Yes, Prabhuji, it's on now. Okay, thank you, Sudhir Prabhu. PPT, open the PPT first. So just I'm opening the PPT for today's Bhagavatam class. Give me 1 second. Hare Krishna. So if all of you can see my slides, please write S in the chat box if you can see the slides. So today we'll be discussing on a very important topic, Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 6, 25th Shloka. And today we will be seeing what is the discussion between the great devotees of the Lord over here and what is the purport. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. सब बोलिए. Om देवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 6, 25th Shloka. सब कोई मेरे पीछे पीछे बोले. एतवाद उक्तवो पर राम तन्महाद. सब बोलिए. एतावत् एतवत्त्वपरामतन्महद् भूतं नमो लिंगमलिंगमीश्वरम्. भूतं नमो लिंगमलिंगम् ईश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे. अहं तस्मै महतां मन्यसे कृष्णार्वनामं विदहे नुकम्पितः. कृष्णार्पणमं विदहेऽनुकुलम्पितः एतावदुक्तो वपरार राम तन्महत्. एतावदुक्तो परमां तन्महत् भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम्. नमो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे. अहं च तस्मै महतां मन्यसे कृष्णार्वनामा विदेह नुकम्पितः. कृष्णार्पणमविधेऽनुकम्पितः एतावदुक्तो वपरराम तन्महद. एतादुक्तो परमां तन्मद्दः भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम्. नमो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे. अहं च तस्मै महतां मन्यसे कृष्णार्वनामं विदेह नुकम्पितः. कृष्ण 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 हरे 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 राम एतवात. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे Please राम avoid chanting during हरे कृष्ण Bhagavatam class. कृष्ण कृष्ण हरे हरे Please avoid chanting during Bhagavatam class. Etavat एतवत् 10. Uktva spoken. Upararama stopped. Tat that. और नीचे रहेंगे क्या? Mahat great. Bhutam wonderful. Nabhalingam personified by sound. Alingam unseen by the eyes. Ishwaram
Ishwaram, the supreme authority, the supreme authority. aham, Aham, I, I, cha, Cha, also, also, tasmai, Tasmai, unto him, unto him, mahatam, Natam, the great, the great, mahiyase, Mahiyate, unto the glorified, unto the glorified, shirshna, Krishna, by the head, by the head, avanamam, Avaramam, obeisances, obeisances, vidadhe, that they executed, executed, anukampitaha, Anukantataha, being favored by him. being favored by him. Purport and translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Then that supreme authority, personified by sound and unseen by the eyes, but most wonderful, stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, I offered my obeisances unto him, bowing my head. बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग पर्पट को, and I request all the devotees to switch on the videos because today is going to be a very special class. और आज के क्लास को अगर आप ध्यान से सुनेंगे then you will be able to see a very amazing transformation in your life, right? That the personality of Godhead was not seen but only heard does not make any difference. The personality of Godhead produced the four Vedas by his breathing, and he. What are you up to? Please don't fiddle with the video. He is seen and realized through the transcendental sound of the Vedas. Similarly, the Bhagavad Gita is the sound representation of the Lord, and there is no difference in identity. The conclusion is that the Lord can be seen and heard by persistent chanting of the transcendental sound. तो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा वो डिवोटीज को जिन्होंने अपना वीडियो को ऑन रखा है, लाइक जगन्नाथ बेस्ड डिवोटी, शक्ति प्रभु, स्वास्तिक प्रभु, कृष्ण कुमार प्रभु, संजय साहू प्रभु, एंड शिवांग प्रभु, and others also. Thank you, Balram Prabhu, to switch on the video. Dadati pratigrinati guhyam akhyati prichati bhungte bhojayate chaiva षट विधि प्रीति लक्षणम. अभी जैसे मैं पिछला क्लास में देख रहा था, as soon as my digital team entered, मधुसूदन प्रभु का अच्छा सा क्लास चल रहा था, and everyone had switched on the video. That is very nice, right? So similarly, I expect that all of you can at least switch on your videos. अगर speaker video on किया है तो it is your responsibility that switch on. Thank you very much. तो आज के इस परपट में हम ये देखेंगे कि आज की दुनिया देखने में ज्यादा बिलीव करती है और सुनने में कम बिलीव करती है. दुर्योधन को स्वयं कृष्ण ने दर्शन दिया था, लेकिन दुर्योधन को कभी समझ में नहीं आया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. एंड सिमिलरली शिशुपाल को समझ में नहीं आया कि कृष्ण स्वयं भगवान है. Many people say, काश में प्रभुपाद जी जब इस संसार में थे 1977 के पहले जन्म लेता तो मैं भक्ति को बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करता. More important than seeing Prabhupada is to follow the teachings of the Prabhupada, because एक मनुष्य यानी एक जो मेल पर्सन है उसके आंख में माया बसती है, और जो फीमेल पर्सन है उसके कान में माया बसती है. लाइक फीमेल्स को अच्छी अच्छी बातें बोलो, अच्छा अच्छा ग्लोरिफिकेशन करो, इमीडिएटली दे आर अफेक्टेड बाय माया. सिमिलरली मेल्स को सुंदर साइड, ब्यूटीफुल लुक्स देखने से ही माया से अफेक्ट हो जाता है. बट एज फार एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज कंसिडर्ड, चाहे आप सुने चाहे वो देखे, उसका बात बिल्कुल सेम है. व्हेन यू रीड the Srimad Bhagavatam, it is as good as worshipping Krishna. कितने लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा है? अगर कर्सर दिख रहा है हाथ ऊपर कर दें. स्क्रीनशॉट्स प्लीज. सो अगर कर्सर आप लोग को दिख रहा है, थैंक यू वेरी मच. स्वास्तिक प्रभु और शक्ति प्रभु ने हाथ. और आज जैसे कि श्री हरिकोटा से और रॉकेट सीधे ऊपर की तरफ जाता है, उसी तरह इस वर्ड से आज मैं परपट को आगे ले जाऊंगा कि द कंक्लूजन, ये पूरे परपट का कंक्लूजन इज दैट द लॉर्ड कैन बी सीन एंड हर्ड बाय परसिस्टेंट चैंटिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल साउंड. और बिकॉज गौर पूर्णिमा आ रहा है और एक वैष्णव का स्टार्टिंग कैलेंडर होता है गौर पूर्णिमा, कहते हैं कि जहां गीता समाप्त होती है वहां भागवत शुरू होता है, और जहां भागवत समाप्त होती है चैतन्य चरितामृत शुरू होता है. तो इसी
इसी लॉन्च पैड से सीधे हम चले जाते हैं चैतन्य चरितामृत के चैप्टर 13 आदि लीला के सेकंड श्लोक में। और जैसे भगवत गीता का एक गान होता है, श्रीमद् भागवतम भी एक सॉन्ग के तरह है, और उसका एक पर्टिकुलर आयाम में एक पर्टिकुलर वे से श्लोका होता है। जैसे भगवत गीता का अगर एक श्लोक उठाते हैं, उसका ट्यून कैसा है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। और श्रीमद् भागवतम कैसा होता है? श्रीमद् भागवतम केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कृष्णेन निहरम इव भास्कर। और चैतन्य चरितामृत तो शुद्ध प्रेम है। चैतन्य चरितामृत एक ही लाइन में गीता के 2 चैप्टर्स को खत्म कर देता है। ज्ञान कांड कर्म कांड विशेर भांड। ये ज्ञान और कर्म कांड एक विष के भांड के समान है, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान आने से घमंड आ जाती है। हाँ, ज्ञान कांड कर्म कांड और कर्मों के हेर फेर से भी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं होता है। तो चलिए आज बात करते हैं गौर पूर्णिमा के बारे में, किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु को हम अपने जीवन में बुलाए। तो चैतन्य महाप्रभु जो श्री चैतन्य चरितामृत है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखा, उसका ट्यून क्या है? चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, चैतन्य दास मुई दासेर अनुदास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी गान में आज श्री चैतन्य चरितामृत के दिव्य लीला में कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कैसे हुआ, प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन डायरेक्टली करते हैं। और ये प्रभुपाद जी का जो भी ट्रांसलेशन है उसको मैं आप लोग को एक बार सुना देता हूं कि प्रभुपाद जी कैसे डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते थे और किस तरीके से वो श्लोकों का पाठ करते थे। वो श्लोकों का पाठ को मैं पहले सुनाऊंगा और आज के क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। गौर हरि बोले तारे हासे छात्र नारी अतएव हईल तार नाम गौर हरि। बाल्य बयस जावत हाथे खड़ी दिल बहुगुण्य बयस जावत विवाह ना हईल। विवाह करिले हईल नवीन यौवन सर्वत्र रहिल प्रभु नाम संकीर्तन। बहुगुण्य बयसे पड़ेन पुराण शिष्य गाने सर्वत्र करेन कृष्ण नामेर व्याख्याने। सूत्रवृत्ति पाँची टीका कृष्णते तात्पर्य शिष्येर प्रतीत है प्रभाव प्रसज्य आश्चर्य। तब आप लोग को सुनाई दिया प्रभुपाद जी कैसे चैतन्य चरितामृत का श्लोक रिसाइटेशन कर रहे हैं। उसी रूप में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कैसे हुआ। आप लोग को मेरा कर्सर दिख रहा है? अगर मेरा कर्सर दिख रहा है हाथ ऊपर कर दीजिए कि अभी हम लोग राइफल जेट में बैठ के बहुत स्पीड से चलेंगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय अद्वैत चंद्र जय जय नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय गदाधर जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास। ट्रांसलेशन खुद देखिए क्योंकि कवर ज्यादा करना है। जय जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्ता, ऐशब चंद्रोदय तम कैल लुप्ता। इस बार जैसे होली आ रहा है तो फाल्गुन के पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण भी इस बार लग रहा है। ठीक उसी तरह जैसे चैतन्य महाप्रभु के जन्म में पूर्णिमा के फाल्गुन की पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लगा था। और ऐसे बोला जा रहा है कि जब ऐसी चंद्रमाएं दीप्तिमान हुई थी इस आकाश में, उसी तरह भौतिक जगत के अंधकार को दूर कर
कर दिया गया। जय जय चैतन्य चंद्र भक्त चंद्र गाना, सबार प्रेम ज्योत्सना उज्ज्वल त्रिभुवन। जब नरेंद्र मोदी जी रांची में आते हैं तो वो अचानक से रांची में नहीं आ जाते हैं। पहले उनकी सिक्योरिटी टीम आती है, उसके बाद ब्लैक कैट कमांडोज आते हैं, उसके बाद एसपीजीएफ आता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्च्यूनर्स दिल्ली से आती है, और उसके बाद 40 गाड़ियों की लाइन लगती है और बहुत सारे स्नाइपर्स कचेरी रोड में और मेन रोड में लग जाते हैं, और उसके बाद में फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी आते हैं। उसी तरह जब कृष्ण भगवान इस संसार में आते हैं, पहले सारे देवी देवता आ जाते हैं और किन्नर और अलग अलग गंधर्व और सब लोग, मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगती है और एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस बहुत केयरफुल, उस दिन का एनर्जी बहुत हाई होता है, गंगा में उफान आती है और सारे फल और वृक्ष फूल से और फल से झुक जाते हैं, और उस समय जब संसार पूरी तरह से तैयार होता है, चैतन्य महाप्रभु के चंद्रमा के अलग अलग पार्ट्स इस संसार में आते हैं और तम को हरते हैं। प्रथमे तसूत्र रूपे गरिया गणना पंचताह विस्तकरी बेविवाराना। तो इससे श्री कृष्ण चैतन्य नव द्वीपे अवतारी अत 40 वत्सर प्रकट बिहारी। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित होकर 48 वर्षों तक प्रकट रहे और उन्होंने अपने लीलाओं का आनंद लिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी फर्स्ट के कुछ वर्सेस में चैतन्य महाप्रभु के पूरे लाइफ के बारे में बताते हैं। 14 तशा के जन्मेरा प्रमाण, 14 पंचनने होइलो अंतर धाना। In the year 1407 of the Saka era, 1486, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in the year 1455, यानी 1534, ये 2024 है, he appeared and he disappeared from this world. 24 बत्सरे प्रभु कैल गृह वास, निरंतर कैल कृष्ण कीर्तन विलास। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे और सदैव हर कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। 24 वत्सर शेषे करिया संन्यास, आर 26 वत्सर कैला नीलांचले वास। 24 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अगले 24 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे। तार मध्य 6 वत्स गमना गमना, कभु दक्षिण कभु गौड़ कभी वृंदावन। इन अंतिम 24 वर्षों में 6 वर्षों तक वो लगातार भारत का भ्रमण करते रहे, कभी दक्षिण भारत साउथ इंडिया, कभी बंगाल, तो कभी वो वृंदावन गए। 18 वत्सरे रहिला नीलाचले, कृष्ण प्रेम नामामृते भाषले सकले। जैसे एक उफान आता है, जैसे एक सुनामी आता है, जैसे एक फ्लड आता है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के इस अमृत तुल्य फ्लड में उन्होंने पूरे भारत देश को डुबा दिया। गृहस्थ प्रभुर लीला आदि लीलाख्यान, मध्य अंत लीला शेष लीला दुई नाम। जो गृहस्थ जीवन था वो आदि लीला में वर्णन किया है और बाद में मध्य और अंत लीला की बात होती है। आदि लीला मध्य प्रभुर जाते का चरित, सूत्र रूपे मुरारी गुप्ता करिल ग्रहित। जो रामलीला में हनुमान बने वही मुरारी गुप्ता बने। कितने लोगों ने मुरारी गुप्ता के घर को देखा है, जो वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, जब आप लोग नवद्वीप में जाएंगे, मायापुर मंदिर से थोड़ी ही दूर में है, हाथ ऊपर कर दे। मुरारी गुप्ता के घर यानी हनुमान के घर को कितने लोगों ने देखा है? शक्ति प्रभु ने देखा है। जब भी आप लोग नवद्वीप जाए इसको देखें। और चैतन्य लीला को 2 लोगों ने रिकॉर्ड किया, सोनू श्रीवास्तव ने भी देखा है, पहला मुरारी गुप्ता और दूसरे स्वरूप दामोदर। प्रभुर शेष लीला स्वरूप दामोदर, सूत्रकारी ग्रंथिला ग्रंथेर भीतर। अब ध्यान से देखिए कब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभुर जन्मोदय, से काले दैव योगे चंद्र ग्रहण होया। यानी जब फुल मून का चांद फाल्गुन पूर्णिमा के शाम में जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। आज भी आप लोग देखेंगे कि गौर पूर्णिमा के शाम को यानी होली के दिन शाम को जब आप मून को जाके देखेंगे, उसमें एक दिव्य कांति, दिव्य आभा और एक गोल्डन कलर आपको दिखेगा। हरि हरि बोले लोका हर्षित हाया,
जन्मिल चैतन्य प्रभु नामा जन्मय। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए, एक और व्यक्ति का जन्म हुआ और वो व्यक्ति का नाम था नाम प्रभु, जिसने संसार को हरि नाम में डुबा दिया। जन्म बाल्य पौगंड कैशोर युवा काले, हरि नाम लोयो प्रभु नाना चाले। बाल्य भावे चले प्रभु करे ना क्रंदाना, कृष्ण हरि नाम सुने रहे रुदाना। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जैसे ही हुआ, वो जोर जोर से रोने लगे और उनका रोना तब तक नहीं रुकता था जब भक्त लोग आके कीर्तन नहीं करते थे, और जैसे ही वो कीर्तन करते थे चैतन्य महाप्रभु का रोना रुक जाता था। अतएव हरि हरि बोले नारी गाना, देखिता आयुष जे बा सर्व बंधु जना। गौर हरि बोले तारे हाशे सर्व नारी, अतएव होइलो तार नाम गौर हरि। गौर हरि का नाम गौर हरि कैसे हुआ? क्योंकि ऐसा नाम लेते ही उनका रोना रुक जाता था। बाल्य वयसे यवत होते खड़ी दिला, पौगंड वयसे यवत विवाह न कैला। आजकल विवाहें इतना लेट होती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विवाह पहले हुआ और बाद में उनका यौवन रूप खिला। विवाह कोरिले होइलो नवीन यौवन, सर्वत्व लोइलु प्रभु नाम संकीर्तन। और विवाह के तुरंत बाद चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन में संसार को डुबा दिया। पौगंड वयस पड़े ना शिष्य गाने, सर्वत्व कारण कृष्ण नामे व्याख्याने। पौगंड अवस्था में वो गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इस तरीके से वो सर्वत्र कृष्ण नाम का व्याख्या करते थे। सूत्रवृत्ति पंजिटिका कृष्ण ते तात्पर्य, शिष्यर प्रतिहये प्रभाव आश्चर्य। चूंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण नाम में समाप्त होती थी, अतएव शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इस तरह से उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। जो शुद्ध व्यक्ति होता है, जो कृष्ण का भक्त होता है, उसका सारा डिस्क्रिप्शन, सारा बातचीत कृष्ण में समाप्त होता है। जारे देखे तारे कोहे कोहे कृष्ण नामा, कृष्ण नाम भाषाइलो नवद्वीप ग्राम। पूरे नवद्वीप को उन लोगों हरि नाम में डुबा दिया। कई शौरव से आरंभी लो संकीर्तना, रात्र दिन प्रेम नित्य संग भक्ति गाना। रात और दिन वो हरि नाम में सबको नचाते थे और सबको भक्त बनाते थे। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन कोरिया, भाषाइलु त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। 26 वत्सराय छे नवद्वीप ग्रामे, लैलु सर्वलोक कृष्ण प्रेम नामे। और 26 इयर्स होते ही वो सबको हरि नाम में डुबाने लगे। 26 वत्सर छिलो को कोरिया संन्यास, भक्तगण लैन कोइलो नीलांचले वास। इसके बाद वो जगन्नाथपुरी निवास करने चले गए। सेतु बंध आरगौड़ा व्यापी वृंदावाना, प्रेम नाम प्रचारिया करिलो भ्रमना। इन 6 वर्षों में कुमारी अंतरीप के लेकर बंगाल होते हुए वृंदावन तक कीर्तन करते, नाचते और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया। और अब असली टाइम आएगा जब पूरे बर्थ को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके पहले उनके पूरे लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अंत चैतन्य लीला शूद्र जीवहाना, के वर्णित पारे तह विस्तार करिया। कौन ही है इस पूरे ब्रह्मांड में जो चैतन्य महाप्रभु के लीला का वर्णन कर सके? सूत्र करी गौनी जो दे अपना अनंत, सहस्र वदने तेनो नाही पाया अंत। 1000 मुखों से भी अगर वर्णन किया जाए तो चैतन्य लीला का अंत नहीं हो सकता है। अब देखिए कि मोदी जी आने के पहले जैसे पूरा वो सिटी तैयार हो जाता है, किस तरह भगवान के आविर्भाव के पहले कौन कौन इस संसार में आ गए। श्री सची जगन्नाथ, श्री माधव पुरी, केशव भारतीयार ईश्वर पुरी, अद्वैत आचार्य पंडित श्रीवास, आचार्य रत्न विद्या निधि ठाकुर हरिदास।
इस तरीके से भगवान के सारे जो भी एसोसिएट्स थे वो भी इस संसार में आ गए। जगन्नाथ मिश्रव पदवी पुरंदर नंद वासुदेव रूप सदगुना सागर। कृष्ण लीला में जो नंद महाराज बने वही चैतन्य लीला में जगन्नाथ मिश्र बने। जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर उपाधि मिली थी, वो नंद महाराज तथा वसुदेव के भांति समस्त सद्गुणों के सागर थे। तार पत्नी सची नाम पतिव्रता सती जार पीता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। सची माता के पिता का नाम क्या था? नीलांबर चक्रवर्ती था। और आगे देखते हैं क्या हुआ। राधा देश जन्मिलो ठाकुर नित्यानंद गंगादास पंडित गुप्ता मुरारी मुकुंदा। और राधा देश यानी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट की एक चक्र धाम में भी नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। असंख्य भक्त का करेला अवतार शेष अवतीर्ण होइलो ब्रजेंद्र कुमार। जब सब एसोसिएट्स इस संसार में आ गए 550 साल पहले, लास्ट में ब्रज के कुमार, ब्रज के नंदन, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो शेई बलराम होलो निताई, और अंत में चैतन्य महाप्रभु लास्ट में आए बिकॉज ही इज द बिगेस्ट वीआईपी। प्रभुर आविर्भाव पूर्वे जत वैष्णगाना अद्वैत आचार्य स्थाने करे गमना। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई जन्म कर्म निंदी करे भक्तेर बड़ाइया। जब इस संसार में पाप बहुत बढ़ने लगा, कलयुग में अंधेरा छाने लगा, सब जगह अलग अलग टाइप के भूत प्रेत और काला जादू की पूजाएं होने लगी, तो वैष्णवों को बहुत चिंता हुआ और अद्वैत आचार्य प्रभु ने ठान लिया कि अब मैं चैतन्य महाप्रभु को नीचे बुलाऊंगा। किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख विषय निमग्न लोक देखी पाइए दुख। वैष्णवों ने देखा कि पूरा संसार माया जाल में डूब रहा है और इस तरीके से लोकेरा निस्तार हेतु करेना चिंताना के मोते ए सब लोकेर होइबे तारना। अद्वैत आचार्य ने सोचा कैसे इस संसार के जीवों का तारण होगा, और ऐसे करके उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चैतन्य महाप्रभु को कैसे बुलाऊं परम धाम से। कृष्ण अवतारी करेन भक्तिर विस्तार तोबे तो सकल लोकेर होइबे निस्तार। कृष्ण अवतरिते आचार्य प्रतिज्ञा कोरी कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। अद्वैत आचार्य ने तुलसी को लिया और गंगा जल में डुबो के इतना जोर से हुंकार किया कि चैतन्य महाप्रभु भी उनके प्रेम वश इस संसार में खिंचे आए। कैसे आए? कृष्णेर आह्वान करे साघना हुंकार हुंकारे आकर्षित होइलो ब्रजेंद्र कुमार। जगन्नाथ मिश्र पत्नी सचिर उदारे अष्ट कन्या क्रमे होइलो जन्मी जन्मी मोरे। जैसे कंस के कारागार में नंद और देवकी के पहले गर्भ आके चले गए, आके चले गए, आके चले गए, वैसे ही सची माता की 8 पुत्रियों ने जन्म लिया और जन्म के उपरांत ही वो मर गए। अपात्य विरहे मिश्र दुखिल होइलो माना पुत्र लागी आराधिल विष्णुर चरण। ऐसे सची माता और जगन्नाथ मिश्र दुख के सागर में डूब गए और विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि अब हमें एक पुत्र दो। तबे पुत्र जन्मिलो विश्वरूप नामा महागुणवान तेना बलदेव धामा। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्वरूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई जो अत्यंत शक्तिमान तथा गुणवान थे, क्योंकि वो बलदेव के अवतार थे। अतएव प्रभुर तनरे बले बड़ो भाई कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताई। पुत्र पाण दंपति होइल आनंदित माने विशेष सेवन करे गोविंद चरणे। 14 सात छाया शाके शेष माघ मासे जगन्नाथ सचिर देखे कृष्ण प्रवेश। इस संसार में जन्म जो होता है वो बहुत अलग होता है।
पति पत्नी आते हैं साथ में, और शुक्र बीजाणु माता के गर्भ में जाता है और संसार में 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है। लेकिन भगवान का जन्म बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेतित। भगवान पहले मस्तिष्क में आते हैं, मन में आते हैं, फिर हृदय में आते हैं, और फिर हृदय टू हृदय ट्रांसफर होके सीधे वो उदर में आते हैं। और भगवान अपने पूर्ण रूप में मकर कुंडल और मुकुट और पूरे वस्त्र और आभूषण से अलंकृत होके आते हैं। और भगवान जब आते हैं तो पूरे देवी देवता चारों तरफ सरकम एम्बुलेशन करने आते हैं। तो कौन सा मास फाल्गुन मास के पहले होता है? माघ मास। और माघ मास में ही कृष्ण भगवान पहले किसके मन में आए? जगन्नाथ के उनके पिता के मन में आए, और फिर वहां से सची माता के मन में आए, और उनके हृदय में आए, और उनके उदर में आए। जब कृष्ण भगवान देवकी के उदर में आए थे तो पूरा चमक आ गया था, और दिव्य तेज और दिव्य रोशनी, जैसे लक्ष्मी माता साक्षात आ गई थी कंस के कारागार में। और वैसे ही क्या हुआ? बदलाव आने लगा जगन्नाथ मिश्रा के शरीर में और सची माता के शरीर में। और क्या बदलाव आने लगा? अगर आप लोग जानना चाहते हैं, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स, BIO, ब्रिंग इट ऑन, मी इन द चैट बॉक्स। लेट मी सी कि कितने लोग जगे हुए हैं और कितने लोग सो गए हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच सोनू प्रभु, स्वस्तिक प्रभु, शक्ति प्रभु एंड अदर्स, दो लोग जगे हुए हैं। मिश्र को हे सची स्थाने नारीता ज्योतिर्माय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठत। जैसे लक्ष्मी माता स्वयं इस संसार में आ गई हो। और जगन्नाथ मिश्रा ने शची माता से कहा, मैं आश्चर्य से देख रहा हूं, तुम्हारा शरीर ये ज्योति से युक्त पुंज की तरह ऐसे लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर पधारी है। जाहता सर्वलोक करये सम्मान, घरे पाठाया दया धान वस्त्र धान। सारे लोग आने लगे, सारे लोग मालाएं लाने लगे, आभूषण लाने लगे, फल लाने लगे, फूल लाने लगे, वस्त्र लाने लगे और सोना लाने लगे इस दंपति का सम्मान करने, क्योंकि दिव्य तेज उनमें आ गया। सची को हे मुनि देखो आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोक सब जैन स्तुति करे। सची माता ने अपने पति से कहा, मुझे बाह्य आकाश में अत्यंत विचित्र तेजोमय पुरुष प्रकट होते हुए दिख रहे हैं, मानो वो स्तुति कर रहे हो। यानी देवी, किन्नर, गंधर्व और सारे देवी देवता आकाश से दोनों दंपति को प्रणाम करने लगे, क्योंकि विष्णु स्वयं अब माता के गर्भ में प्रवेश कर चुके थे। आमार हृदय होइते गेलो तोमार हृदय, है न बूझी जन्मिना कोनो महाशया। फिर मेरे हृदय से निकालकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ, इसीलिए मुझे लगता है कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है। एत बोली दुह रहे हर्षित हाना, शालिग्राम सेवा करे विशेष करिया। इस तरीके से वो शालिग्राम शिला का पूजा करने लगे। होइते होइते अल गर्भत्रयोदश मास, तथापि भूमिते नाहे मिश्रा रहोइलो त्रास। नॉर्मली एक बच्चे का कितने महीने में जन्म होता है? आप लोग टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, 6, 7, 8 या 9, कितने महीने में बच्चा जन्मता है? कितने महीने में? आप लोग टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, कितने महीने में जन्मता है? वेरी नाइस। तो सबको लिख रहे हैं 9 महीने में। लेकिन पता है चैतन्य महाप्रभु निकल ही नहीं रहे थे गर्भ से। और कितने महीने में वो निकले? त्रयोदश मास। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, त्रयोदश कितना होता है? यानी 13th मंथ, 13 मंथ। और इतना देरी होने लगा तो जगन्नाथ मिश्र को बहुत टेंशन होने लगा। नीलांबर चक्रवर्ती कहिला गनिया, ए मां से पुत्र होइबे सबक्षुणा पाइया। जब इस पूरे संसार का सबसे ऑस्पिशियस मोमेंट आएगा तो नीलांबर चक्रवर्ती सची माता के पिता बड़े हर्षित हुए, जो एक बहुत बड़े ज्योतिष थे। उन्होंने बोला अब पुत्र जन्म का समय आ गया है। तो आप लोग सब बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि अब चैतन्य महाप्रभु जन्म लेने वाले हैं। 14 दशके मासे जे फाल्गुन, पूर्णमासीर संध्याकाले होइबे शुभ क्षण। Thus in the year 1407 of the Saka era, AD 1486, in the month of Falgun, February, March, in the evening of the full moon day, the desired auspicious moment arrive. और नवद्वीप में क्या हुआ?
बड़ा गजब हो गया। कितने लोगों को ज्योतिष के बारे में थोड़ा आइडिया है? मी कीजिए, टाइप कीजिए, मी चैट बॉक्स में मी टाइप कीजिए। ज्योतिष के बारे में आपको कुछ आइडिया है? ग्रह, नक्षत्र, लग्न, सिंह लग्न और अलग अलग लग्न और ऑस्पिशियस मोमेंट्स, और किसी को नहीं? तो चलिए, ये श्लोक आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप लोग समझ जाइए कि उनका चार्ट कैसा था भगवान का। सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रह गाना, षड्वर्ग, अष्टवर्ग, सर्व सुलक्षण। देखिए, कभी भी शास्त्र पढ़े तो संस्कृत को पढ़े, बंगला को पढ़े और उसका रिसाइटेशन करे, तभी आप उस मूड को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ज्योतिर्विद्या आर्थिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त का वर्णन निम्न प्रकार था। शुभ जन्म चंद्र सिंह राशि पर था, सिंह उच्च स्थान पर था, ग्रहगण उच्च स्थान पे और शक्तिशाली स्थिति में थे, षड्वर्ग और अष्टवर्ग शुभ प्रभाव प्रदर्शित कर रहा था। और उस डिवाइन मोमेंट में जब पूरा ब्रह्मांड तैयार था, जब असुरगण और देवगण और किंदर और गर्भ और सारे राशि और नक्षत्र, उस टाइम पे श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। एकालंक गौर चंद्र दिला दर्शन, शेकालंक चंद्रेर आरको न प्रयोजन। अरे, जब गौर चंद्र का जन्म इस संसार में हुआ तो इस संसार के चंद्र की क्या जरूरत है? क्योंकि गौर चंद्र अकलंकित हैं, उनमें कोई कलंक नहीं है। लेकिन इस संसार के चंद्रमा में तो कलंक या काले धब्बे हैं। तो इस संसार के चंद्रमा की क्या जरूरत पड़ी जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतीर्ण हुए? ए तो जाने रहु कैल चंद्रेरा ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाषे त्रिभुवना। चूंकि चंद्र ग्रहण का समय था, गंगा में उफान आ रही थी, सारा नवद्वीप धाम गंगा में आ गए स्नान करने के लिए, और हरि हरि की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। जय जय ध्वनि होइलो सकल भुवना, चमत्कार होइए लोक भावे मना मना। सबके मन में उद्वेग शांत हो गया, आदि दैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक क्लेश जीरो हो गई और सबके मन में दिव्य प्रेम हो गया। अचानक से लोगों को समझ में नहीं आया कि मेरा दुख कहां गायब हो गया है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तो दुख गायब हो गया। जगत भोरिया लोके बोले हरि हरि, शिक्षण गौर कृष्ण भूमे अवतारी। जब हरि नाम उद्वेग से पूरे ब्रह्मांड में हो रहा था व्याप्त, उसी टाइम पे चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए। प्रसन्न होइल सब जगत रमना, हरि बोली हिंदू के हास्य कर यवना। नवद्वीप में आज भी आप जाएंगे तो वहां हिंदू पॉपुलेशन भी है, मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। तो हिंदू पॉपुलेशन तो हरी हरी कर रहा था और बंगाली लेडीज उलूर ध्वनि कर रही थी, ऐसे उलूर ध्वनि। आज भी आप लोग मायापुर में जाएंगे तो जब राधा माधव का दर्शन खुलता है तो आप लोगों ने वो उलूर ध्वनि सुना होगा। अगर आप लोगों ने उलूर ध्वनि सुना है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यूडी फॉर उलूर ध्वनि। तो हिंदू लोग ऐसे खुश हो रहे थे और मुस्लिम लोग यानी यवन लोग, मेरा कर्सर को देखिए, यवन लोग ये सब देख के उनको हंसी आ रही थी। हिंदू के हशाय करे यवना, हरि बोली नारीगण दया हुला हुली उलुध्वनि, स्वर्गे वाद नृत्य करे देव कौतूहली। इस संसार में तो ये सब हो रहा था, लेकिन देवलोक में क्या हो रहा था? स्वर्ग में वाद्य बज रहा था, स्वर्ग में नृत्य हो रहा था और स्वर्ग में सारे देवी देवता प्रसन्नता से नाच रहे थे। शिव जी नाच रहे थे और देवी नाच रही थी और सारे देवगण नाच रहे थे और प्रसन्नता से वो ढोल करताल मृदंग और दुंदुभी बजा रहे थे, क्योंकि सही चैतन्य महाप्रभु का जन्म इस संसार में हो गया था। प्रसन्न होइलो दस दिक प्रसन्न, नाड़ी जल स्थावर जंगम होइलो आनंदे विवला। कितने लोग कुज्जू में चरण पहाड़ी धाम का दर्शन किए हुए हैं? आप कुछ दिन पहले यूथ टीम हम लोग की गई थी, वहां आप लोगों ने देखा होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम से पत्थरों को गला दिया। उसी तरीके से जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए तो उन्होंने स्थावर और जंगम सब जीवों को हरि नाम में डुबा हुआ, चाहे वो उसमें प्राण हो या नहीं हो। नादिया उदयगिरी पुरचंद्र गौरहारी, कृपा करे होइला उदया,
पापता होइलो नाश, त्रिजगत उल्लास, जगत भरे हरि ध्वनि होया। इस तरीके से अलग अलग जगह पे, चाहे वो नवद्वीप हो या बंग देश हो, हर जगह ऐसा होना लगा। और हरिदास ठाकुर भी हुंकार देके गंगा स्नान के लिए चल पड़े, और हरिदास ठाकुर के बाद बाकी भक्त भी गंगा स्नान के लिए चल पड़े। और इसके बाद जगत आनंदमय देखी माने विस्मया, ताहरे थोरे काहे हरिदास, तुम्हारा रंग मोर मना प्रसन्न, देख की छुक रहे आछे भाषा। सबका मन प्रसन्न चित हो गया और हरिदास ठाकुर भी देख के हैरान हो गए। आचार्य रत्न श्रीवास, सबके मन में उल्लास होने लगा और सब आनंदित हो गए। ए मात भक्त तति जानर देशे देश स्थिति, ताह ताह पाने मानो बले, नाचे हरे संकीर्तन आनंदे विवल माने, दान करे ग्रह रे चाले। लोग दान कर रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। और इस तरह से सारे भक्त जो भी जहां थे, जिस नगर तथा जिस देश में थे, सब के सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे, संकीर्तन करने लगे, मनोबल द्वारा दान करने लगे और अपने मन की प्रसन्नता से विह्वल करने लगे। अगले 10 मिनट में ही उनका जन्म हो जाएगा और ये क्लास एंड हो जाएगा। तो हम ट्रांसलेशन को देखेंगे। सभी कोटियों के सम्मान या ब्राह्मण स्त्रियों के विविध विविध उपहारों को लेकर थालियों का भेंट कर रहे थे। सोने की तरह चमचमाते स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सबके मन में अत्यंत प्रसन्नता की अनुभव हो रही थी और वो आशीर्वाद दे रहे थे। और कौन कौन देवी देवता चैतन्य महाप्रभु को देखने आए? सावित्री, गौरी, सरस्वती, सची, रंभ, अरुंधति, आरजात देवता नारी गान, नाना द्रव्य पात्र भरी, ब्रह्मणी रवेशधारी, आशीष भकारे दर्शने। समस्त देवी स्त्रियां, सरस्वती, दुर्गा देवी, ब्रह्मा जी, शिव जी, नरसिंह देव, इंद्र, ऋषि वशिष्ठ और पत्नियां एवं स्वर्ग की अप्सरा रंभा भी सम्मिलित थी। ब्राह्मणियों को वेश धारण करके नाना प्रकार के उपहार लेके नवद्वीप धाम में सब आके चैतन्य महाप्रभु को उपहार देने लगे। अंतरिक्ष देवगणे गंधर्व सिद्ध चारणा, स्तुति नृत्य करे वादय गीता, नारतक वादक भत नवेत्व जरत, शबाश नाचे पान प्रीत। बाह्य अंतरिक्ष के सारे देवता, जिनमें गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, चरण लोग के निवासी सम्मिलित थे, स्तुति करने लगे और गीत गाकर, ढोल बजाकर नाचने लगे। इसी प्रकार नवद्वीप नगरी में सारे नर्तक, गायक, भाटगण एकत्र होकर अत्यंत प्रसन्नता से नाचने लगे। के बाशे के बजाए, के बा नाचे, के बा गाए, शुभली ते नारकारे बोला, खंडले का दुख शोक प्रमोद पुत्रित लोक, मिश्र होइलो आनंदे विवाला। कोई समझ नहीं पा रहा था। क्या नहीं समझ पा रहे थे? केबा आशे, कौन आ रहा है? केबा जाए, कौन जा रहा है? केबा नाचे, कौन नाच रहा है? केबा गाए, कौन गा रहा है? सबते नारे करे बोला। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रेम के सागर में ब्रह्मांड डूबने लगे। खंडली के दुख शोक प्रमोद पुत्री रलोका, मिश्र होइले आनंद विवला। आनंद विवल हो रहे थे लोग और फीलिंग्स में उबर पूरा झुके हुए थे। आचार्य रत्न श्रीवास जगन्न मित्र पाश, आशितान रखरे स्वाधाना। और इस तरीके से चंद्रशेखर आचार्य, श्रीवास ठाकुर दोनों ही जगन्नाथ मिश्रा के पास आकर तरह तरह से ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने धार्मिक नियमों के अनुसार जन्म काल के साथ अनुष्ठान किया और जगन्नाथ मिश्रा ने अलग अलग टाइप के दान दिए। जगन्नाथ मिश्रा ने भेंटों और उपहार के धन पाया और कुछ घर में था और उन ब्राह्मणों को, गायकों को, नाचने वालों को सबको दान देकर अति प्रसन्न किया।
श्रीवास ब्रह्ममणि नामतरे मालिनी आचार्य पत्नी संगे। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी के साथ चंद्रशेखर आचार्य की पत्नी और अन्य स्त्रियां परम प्रसन्नता से बालक की पूजा के लिए सिंदूर, हल्दी, तेल, खोई, भुने हुए चावल, केले तथा नारियल, जो बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं, भगवान के लिए ले आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के एक दिन बाद अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, जो जगत भर के लिए पूज्य है, अपनी पति से आज्ञा लेकर तरह तरह के भेंट लेकर उस सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने आए। वह अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लाए, हाथ में कंगन, बाजूबंद और पांव के लिए पायल लाए, और उसमें सोने के बंदगड़ी, रेशमी कमरबंद, हाथों के पावों के लिए आभूषण, सुंदर रेशमी साड़ियां और रेशम के बने बच्चों के पोशाक, साथ ही में सोने चांदी के सिक्के समेत अनेक द्रव्य बालक को नौछावर किए। सीता ठाकुरानी पर्दे में ढकी पालकी में चढ़कर दासियों को लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर गई और अपने हाथ से धुर्वा, धान, गोचरन, हल्दी, कुमकुम और चंदन लाई और सारे भेंट को पिटारी में बच्चे को सौंप दिया। जब सीता ठाकुरानी अपने साथ खाने के वस्तुएं, वस्त्र और उपहार लेकर शची देवी के घर आई तो वह नवजात शिशु को देखकर चकित हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शिशु साक्षात गोकुल के कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से बलराम होलो निताय। श्याम सुंदर मेघ वर्ण के थे और गौर सुंदर सुवर्ण वर्ण के थे। बालक के दिव्य शारीरिक तेज, शुभ लक्षणों से युक्त सुगठित अंगों तथा स्वर्ण के रूप को देखकर सीता ठाकुरानी अत्यंत प्रसन्न थी और मातृ से उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने नवजात यीशु के सिर पर दुर्वा दल और धान्य देकर दीर्घायु होकर के आशीर्वाद दिया, किंतु भूत प्रेत तथा डायनों से भयभीत होने के कारण उन्होंने बालक का नाम तुरंत निमाई रख दिया। जिस दिन माता तथा बालक ने स्नान किया, प्रसूति गृह को छोड़ा, उस दिन सीता ठाकुरानी ने उन्हें तरह तरह के गहने और वस्त्र दिए। तत्पश्चात सीता ठाकुरानी और शची देवी जगन्नाथ मिश्रा द्वारा समादरित होकर प्रसन्न हुए और अपने घर लौट आए। इस तरीके से ये लीला धीरे धीरे आगे गया और श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म घड़ी की गणना करके नीलांबर चक्रवर्ती ने जगन्नाथ मिश्र को एकांत में कहा कि उन्होंने बालक के शरीर तथा जन्म घड़ी दोनों में ही महान व्यक्ति के विभिन्न लक्षण देखे। इस प्रकार वो समझ जाए कि ये बालक भविष्य में तीनों लोकों का उद्धार करेंगे, एक लोक नहीं, तीनों लोकों का। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी अहेतुकी कृपावश शची देवी के घर में अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु उस किसी भी व्यक्ति पर अत्यंत कृपालु होते हैं। आप लोग सब, ऑल 28 पार्टिसिपेंट्स को दिव्य कृपा मिलेगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उस किसी भी व्यक्ति पर अत्यंत कृपालु होती हैं जो उनके जन्म के इस वृत्तांत को सुनता है, प्रेम पूर्वक, हर्ष पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक। ऐसा मनुष्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त जरूर करता है। जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ग्रहण नहीं करता, वो अपने सुअवसर को खो देता है। अमृत धुनी भक्ति रूपी अमृत के प्रवाह नदी है। यदि मनुष्य शरीर पाकर भी कोई ऐसे नदी के जल में स्नान नहीं करता है और विषैले गड्ढे के जल को पीता है, तो अच्छा यही होता है कि वह जीवित रहने के बजाय पहले ही मर जाए। तो आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी डिजिटल टीम उस लिंक को डाल दे जिसमें मैंने पूरा चैतन्य लीला के जन्म को डिटेल में बताया है रामप्रिय दास के चैनल में। और इसके साथ मैं एक छोटा सा वैष्णव गीत को लूंगा। प्रणव, ओपन इट। और इससे मैं आप लोग सबको बताऊंगा अगले 5 मिनट में, और लास्ट के 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर्स होगा क्विक, कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ें, चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझें। क्योंकि जब फीवर हाई होता है तब पुदीन हरा मत लीजिए, जब फीवर हाई होता है तो क्या लीजिए? पैरासिटामोल। और इसी तरह कलयुग में अगर युग अवतार के बारे में नहीं जाने तो इस संसार में हम जन्म लेके भी अपना जीवन बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो लास्ट के 2 मिनट में मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, क्विक, बी क्विक, है ना, कि क्या इंपॉर्टेंस है चैतन्य महाप्रभु का और किस तरीके से गौर पूर्णिमा में आप इसको जाने। क्या आप लोग को मेरा स्लाइड दिख रहा है? अगर दिख रहा है हाथ ऊपर कर दीजिए। और फिर लगता है आप लोग बहुत दुखी हो गए चैतन्य लीला सुन के, सबने वीडियो ऑफ कर दिया है। हम भी अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं। हरे कृष्णा।
अवतार सार गौरा अवतार केनो न भजिली तारे कोरी निरेबास गेलो न पियास आपन करम फेरे। सारे अवतारों के सार गौर अवतार आए हैं, क्या आपको समय नहीं मिला? कैनो ना भजीली तारे कोरी नीरे वास, चारों तरफ जल है लेकिन आपका प्यास क्यों नहीं बुझ रहा है? गैलो ना पियास आपन करम फेरे, कंठ केर तरु सदा सेविली अमृत पाइवाराशे प्रेम कल्पतरु गौरांग अमार ताहरे भाविली विष। एक ऊंट जब कैक्टस को खाता है तो उसको मीठा रस मिलता है, बस उस मूर्ख ऊंट को समझ में नहीं आता कि वो कैक्टस का रस नहीं है बट अपना ही खून है जो ब्लीडिंग हो रहा है जब वो कैक्टस को खा रहा है। उसी तरह इस संसार में हैप्पीनेस के पीछे, कंटक के तरु के पीछे हम अमृत पाने के आस में जाते हैं लेकिन हमें केवल विष मिलता है। सौरभेर आश पलास शुकीली नासते पाशिली कीट इक्ष दंडु भावे काठ चुशीली केमोने पाइबे मीठ। गर्मी का सीजन है, क्या आप कभी देखते हैं कि शुगर केन जूस के बीच में कोई बांस को घुसा दिया है? बांस को घुसाने से मशीन टूट जाएगा लेकिन रस निकलेगा नहीं। उसी तरह इस संसार के पीछे में हम भाग रहे हैं बांस को खाने के लिए, तो किस तरह के से हमें गन्ने का रस मिलेगा? हार बोलिया गोराय पुरीली शमन किंकर साप शीतल बोलिया गुण पुहाली पाइले वज्रताप। आपको लगा इससे हम खुश हो जाएंगे, वो व्यक्ति मुझे खुश कर देगा, ये पाने से हम खुश हो जाएंगे, ये डिग्री मिल गया तो हम खुश हो जाएंगे, और हार पहन के जिसको आपने पहना, जिसको आपने सच्चा समझा, वही निकला सांप और आपके गले में लटक गया। संसार भजीली श्री गौरांग भूलीली नाशुनिली साधुर कथा इहा परकाल दुखा खोइली खाइलु आपन माथा। संसार को पूजा मैंने, साधु को भूला मैंने, और अपना हेडेक को बढ़ाया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग सबको आने वाले गौड़ पूर्णिमा का बहुत बहुत बधाई हो। अपने जीवन के न्यू ईयर को गौराब्द से स्टार्ट करें और चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़े। गिव मी चैतन्य चरितामृत क्विक। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुने, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीला के बारे में जाने, क्योंकि जब तक इस प्रेम सागर में आप डूबेंगे नहीं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत विषय नमः। और बंगला को नहीं समझने से भी आप बंगला को पढ़े और इस दिव्य लीला में आप लोग सब इसके बारे में सुने और समझे। सो विद दिस आई विल end the class. If there is one question, we will take it and we'll stop for the day. किसी को अगर एक प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं और आप लोग अपना शेयरिंग कर सकते हैं। मैंने लिंक को डाल दिया है। यस आशीष प्रभु, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके हरे पूछिए। कृष्णा प्रभु जी, किन्नर गंधर्व और एक और बताए थे, क्या होता है प्रभु जी? किन्नर गर्ध, सो देर आर गंधर्वज, किन्नर और यक्ष।
दे आर सेलेशियल बीइंग्स। जैसे आप भागवत पुराण पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, दे आर स्पेशल बीइंग्स, गाने वाले, नाचने वाले। और जैसे जैसे असुर लोक और पाताल लोक में राक्षस, प्रेत, ब्रह्म राक्षस, जिन और ये सब अलग अलग होते हैं, वैसे ही देवलोक में किन्नर, गंधर्व, यक्ष लोग होते हैं। दोज आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। इसके बारे में पुराणों में और भागवत में अच्छी तरह वर्णन है। इज इट क्लियर? ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। Okay, so it is already 8 o'clock. Over to Sudhir Prabhu for the final words. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। आज चैतन्य चैतरामृत साहब ने बताया कि कैसे महाप्रभु का जन्म हुआ था और कैसे पूरा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता उसमें आके उस लीला का आस्वादन करे था। इसी तरह हम लोग को भी चैतन्य चैतरामृत हो सके तो पढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो थैंक यू इस क्लास के लिए प्रभु जी। तो सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, एक बार अनम्यूट करके प्रभु जी के लिए हरि बोल दें। थैंक यू के लिए। हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि